امن و قوت عدل و محبت وحدت کا پرچار کرو، انسانوں کے اس نگری میں انسانوں سے پیار کرو، انسانوں کی اس نگری میں انسانوں سے پیار کرو۔ جی ہاں، محبت عام کرو، اخوت کی بات کرو، وحدت کا پرچار کرو، دکھ درد میں ساتھ دو، انسانوں کی نگری میں انسانوں سے پیار کرو، کیونکہ نفرتوں کے ماحول میں فی الوقت ترجیحی بنیادوں پر کرنے کی یہی چیز ہے۔ اجتماعیت کی اہمیت کا انکار کون کر سکتا ہے؟ کسے نہیں معلوم کہ کسی بھی قوم کی ترقی میں اجتماعیت کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ اتحاد اور قومی یگانگت قوموں کی ترقی کے راستوں کے اہم سنگ میل ہوتے ہیں۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اجتماعی طاقت کسی بھی مشکل مرحلے میں دشواریوں کو سہل بناتی ہے۔ یہ بھی کسی پر مخفی نہیں ہے کہ اجتماعیت کے ذریعے ہی قومیں کسی بھی ناممکن کو ممکن بنانے کی پوزیشن میں آ جاتی ہیں۔ आमचे असलाफ आणि बुजुर्ग जे कोणते ठावार गेले, कौमी दर्द आणि भाईचारगीचे जज्बान हर ठावार जमात कायम केले आणि हे जो फायदा अल्हम्दुलिल्लाह आमचे सगळे कौमा जालो, आमचे हर इदारा जालो, बीमारी तकलीफ व परेशानी बितर मिजाज कुर्सी गरीब दियार बितर अजनबियत सो एहसास कम करू सबब इज्तिमाइयत अहम रोल अदा करता। आमची जमात को हे कस नेक अजाइम आणि इरादा घेऊन कायम करून गेली। جنوبی ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں بسنے والے مختلف قبائل میں اس کی شاندار مثالیں نہ صرف یہ کہ دیکھنے کو ملتی ہیں، بلکہ دنیا بھر کے لوگ اس خطے ارضی کے لوگوں کی اس ناحیے سے تقلید کو بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ کرناٹک کے بھٹکل اور کیرل کے لوگوں میں یہ قدرے اس قدر عام ہیں کہ دوسرے مقامات کے لوگ فلاحی اور رفاہی اداروں کی کامیابی کے لیے اسی اجتماعیت کو بطور نمونہ اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ بھٹکل کی مناسبت سے اپنے تمام بھائیوں سے، پورے ملک کے لوگوں سے تو یہ گزارش کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اللہ کے واسطے بھٹکل کا ماڈل ہی اپنانے کی کوشش کریں کام کرنے کے لیے۔ بھٹکل کے لوگ دنیا بھر میں جہاں بھی بستے ہیں وہاں اپنی قومی مناسبت سے ایک اجتماعی نظام فوراً سے پیشتر قائم کرتے ہیں۔ ملک کی مختلف ریاستوں کے علاوہ خلیجی ممالک حتیٰ کہ مغربی ممالک میں بھی بھٹکلی احباب اس پر توجہ دیتے ہیں۔ وطن عزیز کی معاشی ناہمواریوں کے بعد آج سے کم و بیش 70 برس قبل بھٹکل کے کچھ لوگ اپنی قوم کو خوشحالی کی راہ پر لانے اور قوم کو سطح غربت سے اوپر اٹھانے کے جذبے سے جب خلیج کے صحراؤں کی طرف نکلے ہیں تو وطن عزیز کی کچی سڑک نہ صرف پکی سڑک میں تبدیل ہوئی بلکہ یہاں کے محدود تعلیمی نظام کو وسعت دے کر ان تعلیمی مراکز کو اس قابل بنایا کہ یہاں کے پڑھنے والے طلباء جدید ترقی یافتہ دنیا کو آنکھ دکھانے کے قابل ہو گئے۔ 1952 یعنی کہ ہندوستان کی آزادی کے محض 4 برس بعد منطقہ شرقیہ سعودی عرب میں بھٹکل کے لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوئی تھی۔ کچھ برس تک لوگوں کی تعداد کم تھی، جس کی وجہ سے باقاعدہ جماعتی نظام قائم نہیں کیا جا سکا۔ 1988 کو بھٹکل سے یہاں بھٹکلی افراد کی کچی خاصی تعداد جمع ہوئی تو باقاعدہ اجتماعی نظام کے قیام کی طرف منظم پہل کی گئی۔ تقریباً 30-35 वर्षे झाली आता जमात कायम करून। माशाअल्लाह आम्ही तलमक्तूर जे काही खिदमत अशी आम्ही आमची सगळी जमात मिळून हे काम करते वाटून, खास करून गावी इदारा मुस्तहकम करूच्या सबब आमची जमात हिंगा वजूद भितर आयिल्ली। मुकामी माणसाचे खिदमतचे अलावा गावात अंजुमन जामिया तंजीम वगैरहची हर भाशेन हर वक्ता पर हर मुसीबतचे दौर भितर हर मसाइल भितर आगे बढ़ून त्यांची खिदमत करते आयिल्ली ते। हालात बदलले 93च्या वार भितर को 93ची जे कोणती हालात झाले तेजे भितर को जमात आपले तरीका पर जेटले खिदमत केली तो माशाअल्लाह हज़ार मिन शम्स से। منطقہ شرقیہ میں قائم بھٹکلی جماعت کی بہت سی خصوصیات میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس جماعت کا دائرہ عمل رقبے کے اعتبار سے بیرون بھٹکل میں قائم تمام جماعتوں میں سب سے بڑا ہے۔
جس کے تحت دمام، الخبر، الجبیل، رحیمہ، الاحسا اور دیگر علاقوں پر یہ مشتمل ہے. आमका ही आमची जमातीची खुशनसिबी का कपलान आमचे ताजीर हजरात हिंगा जो कुछ वाटे आपले कौमाची मेंबरा सब आपले भावड़ा सब जो कुछ तो ताउन करून संबंध ज्यादा सगळे गल्फा भितर ताजीर हजरात हिंगा चालले. लेकिन आयन वक्ता ऊपर बास टाइमा ऊपर सऊदी देशात जावच्यान कोविड जावच्यान आमची चंद बिझनेस जो कोणती तेकाद अशी तकलीफ झाली आणि बंद करपाक पडले. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तो वक्त बी दुबारा वापस येते अशी जी कोणती आमची हुकुमतीचो 2030 विजन घेऊन जो कोणती हिंगा ॲक्टिविटीज या काम या हिंगाचे डेव्हलपमेंट असे वापस तो बिझनेस इंशाल्लाह उम्मीद असे आमचे आमची माणसे वापस करतले. जमात के क़याम और उसके इस्तेहकाम में कुछ लोगों का किरदार निहायत अहम है और उसकी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वालों की तादाद भी बेशुमार है. जो खादिमीन कौम अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनकी भरपूर मग़फ़िरत फरमाए, और जो बक़ैद हयात हैं उन्हें सेहत की ज़िंदगी अता फरमाए. चलिए एक नज़र डालते हैं अहम तस्वीरों पर. हम कौम मुस्लिम पर फिदा, खिदमत हमारा है शिआर, हम जान सारा ने वतन है अपने दिल से हमको प्यार. सरमाये उम्मत है हम, मिल्लत की हम है आबरू, सरमाये उम्मत है हम, मिल्लत की हम है आबरू. हम राहिए राहे हरम, नेकी की हमको जुस्तजू. कौम मुस्लिम पर फिदा, खिदमत हमारा है शिआर, हम जान सारा ने वतन है अपने दिल से हमको प्यार. हम जुल्मतों के अहद में है नूर ताबिश का निशान, हम जुल्मतों के अहद में है नूर ताबिश का निशान. हम रोशनी के नाम बर, हमसे जमाना ज़ौफ़िशान. कौम मुस्लिम पर फिदा, खिदमत हमारा है शिआर, हम जान सारा ने वतन है अपने दिल से हमको प्यार. जमात ने अपने क़याम के पहले दिन से ही भटकल के मरकज़ी इदारों समेत अतराफ़ व अकनाफ़ में कायम दीगर इदारों का भी जो ताउन किया है, उससे उनकी अपने वतन की मिट्टी से मोहब्बत का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है. 1992 में जब शिद्दत पसंदों ने मुल्क में खून रेज़ फसादात की आग भड़काई तो भटकल शहर भी उससे मुतासिर हुआ. इस मौके पर यहाँ बाज़ाबादकारी और ज़ख्मियों के इलाज व मुआलजे समेत बेगुनाहों को रिहाई दिलाने जैसे कई अहम कामों में तंजीम की शाना बशाना मंतिक़े शर्क़िया की जमात ने अपना भरपूर ताउन पेश किया. उन्हीं हालात में मकामी मुसलमानों को जब ऑटो ड्राइवरों की जानिब से बायकॉट जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा तो भटकल मुस्लिम जमात मंतिक़े शर्क़िया ने खलीज कौंसिल के ताउन से भटकल में नहायत मामूली मुसाफिर किराए के साथ टेम्पू सर्विस का आगाज़ किया, जो कि अहले वतन के साथ एक बड़ा कीमती ताउन था. जमात के सरगर्म मेंबर जनाब काजिया मोहम्मद यूनुस ने भटकल की बैरूनी जमातों के मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म भटकल मुस्लिम खलीज कौंसिल के लिए शहर भटकल के क़ल्ब में एक शानदार 2 मंजिला इमारत तामीर करके वक्फ कर दी. इसी तरह शरावती कौंसिल के तहत चलने वाले इत्तिहाद पब्लिक स्कूल की इमारत हमारी ही जमात के एक फ़र्द सिद्दीक़ा मोहम्मद इरशाद ने अपने ज़ाती सरफ़े पर तामीर करके मिल्लत के नौनिहालों की एक बड़ी ज़रूरत की तकमील में अपना अहम किरदार अदा किया. इसे इत्तिहाद की बरकत कहिए कि दमाम और यहाँ के दीगर इलाक़ों में हमारी जमात से जुड़े अफराद ने तिजारती मैदान में बड़ी तरक्की की, जिसका रास्त फ़ायदा ये हुआ कि मिली और कौमी खिदमात के अंजाम दही के लिए उनसे बड़ी मदद मिली. कई एक दीनी, दावती, तालीमी और समाजी प्रोजेक्ट वो बफज़्ल खुदा पाए तकमील को पहुँच गए. तलाश माश के लिए सऊदिया आने वाले भटकली अफराद का जमात की जानिब से हर मुमकिन ताउन किया जाता रहा है. पहले से मौजूद ताजिरों ने अपना माल उन्हें उधार दे दिया और उनकी तिजारत के फ़रोग़ के लिए अपने तजुर्बात के साथ साथ माली ताउन भी पेश किया.
खास करून आमचे जे हिंगाचे आम मेंबर वाट्यात अगर तांकां काही माली तंगी रावलां आमची एक कमिटी आहे इमदादी बाहमी कमिटी वरून तेजे नजरले आमी तांकां आसले एक आसान किस्ता पर लोन दिता आणि अल्हम्दुलिल्लाह ती आमची मेंबरां तेजेन भरपूर फायदा को ते वाटे देर आयत दुरुस्त आयत मिसल मिसदाक दुबई बचत स्कीम तर्ज ही मेयार टिकून आम्ही आमचे मेंबरां मायल करून त्यांची माहाना आमदनीतल्यान एक धाकलीशी रकम पसेपुश धरते कतरा कतरा जरिया बनता है उसूल मुताबिक एक बड़ी रकम जमा करते ही रकम मोहताज अंदाज दूसरेकडे सरमायाकारी करते ही सरमायाकारी जरिए मिलली फायदा तमाम बचत स्कीम हिस्सा घेतलेले अराकीन दरम्यान तकसीम करते एक तरफ बचतची ही स्कीम हिस्सा घेतलेले तमाम अराकीन एक बड़ी रकम पसेपुश धर्मचार माइल करते कुछ हद सर तंका मुनाफा को हासिल कराऊंचो इंतजाम करून मोटे। भटकल में मरीजों की सही रहनुमाई और उनके इलाज और मुआलजे के लिए राबता के तहत राबता क्लिनिक का आगाज भी दमाम जमात ही की देन है। भटकल की गौसिया स्ट्रीट जहां बरसों से साफ पानी के मसाइल का सामना था तो जमात ने भटकल मुस्लिम यूथ फेडरेशन के इश्तिराक से पीने के साफ पानी के लिए अपना ताउन पेश किया और उसके बाद वहां फिल्टर सिस्टम नस्ब किया गया जिससे नशेबी इलाके की एक बड़ी आबादी फ़ायदा उठा रही है। अंजुमन हॉस्टल के एक फ्लोर की तज़ीनकारी का काम भी जमात के ताउन से मुकम्मल किया गया। इसी तरह बेंगलुरु में भटकल से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की सही तरबियत और निगरानी के लिए हॉस्टल की ज़रूरत महसूस की गई और SM याहिया मेमोरियल हॉस्टल की मौजूदा इमारत नाकाफ़ी हुई तो जमात ही ने उससे मुत्तसिल अराज़ी ख़रीद कर तलबा की एक बड़ी ज़रूरत की तकमील के रास्ते हमवार किए। जमात का अपने मेंबरान के लिए बड़ा कारनामा यह है कि भटकल में रिहायशी मकानात की तामीर के लिए ज़मीन की आसमान को छूती कीमतों के दरमियान जाली रोड पर सिर्फ 2.5 लाख के हिसाब से 3 गुंटा अराजी ख़रीदने की एक स्कीम शुरू की गई और तकरीबन 95 प्लॉट तैयार करके जमात के मेंबरान की रिहाइश का बंदोबस्त किया गया है। फिलवक्त इस इलाके में एक मस्जिद और कुछ मकानात कायम हैं। भटकल के अलावा सऊदीया में भी भटकली फैमिलीज़ के बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करने के लिए जमात के ज़ेर एहतिमाम दमाम और जुबैल में कायम मदरसे के ज़रिए बच्चों के लिए दीनी तालीम का नज़म किया गया। कोरोना के भयानक दिनों में राशन किट की तकसीम के साथ क्वारंटाइन वगैरह के लिए दमाम में एक अलग फ्लैट का इंतज़ाम भी किया गया। भटकल व अतराफ से आने वालों का जमात हर तरह से ताउन करती है और अहम शख्सियात की आमद पर इस्तकबालिया प्रोग्रामात मुनाकिद करके उनसे इस्तिफ़ादा करने की शक्लें पैदा करती है। जमात की सरगर्मियों में ईद मिलन तकरीबात का अपना एक अलग मकाम है जिसके ज़ेर एहतिमाम साल में एक मरतबा जुमला मेंबरान को ईद मिलन के बैनर तले जोड़ा जाता है। माशाअल्लाह आमची टीम भल्ली जद्दोजहद करून भल्ली कोशिश करून इन बेइंतहा जो कने मेहनत करून आप प्रोग्राम तुम्हें सामने दरला। इस रंगारंग प्रोग्राम के जरिए अहले वतन खुद को वतन की ईद की खुशियों में शरीक महसूस करते हैं जहां न सिर्फ मुरक्कन ग़िज़ाओं के जरिए मेहमान नवाजी की जाती है बल्कि तफरीही प्रोग्रामों के जरिए परदेश की बोरियत में भी खुशी के पहलू तलाश किए जाते हैं। इस प्रोग्राम में लोगों की दिलचस्पी इसलिए भी रहती है कि इसी प्रोग्राम के ज़रिए ही वो लोग कुछ देर माशी जिम्मेदारियों के बोझ से खुद को अलग थलग करते हैं, इसलिए कि यहाँ के ताजरों का या उनके पास मुलाजमत करने वालों के पास साल भर कभी छुट्टियों का तसव्वुर नहीं होता। इन हालात में इस प्रोग्राम की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कदम है कुल जहां जो दे मुसलसल हम इना ज़ेरे कदम है कुल जहां जो दे मुसलसल हम इना महमेज करती है हमें फिक्रे हयाते जावेदा। कौम मुस्लिम पर फिदा खिदमत हमारा है शिआर हम जान सारा ने वतन है अपने दी से हमको प्यार। हमारी आज के इस मिलन का आखिरी इनाम
बम्पर इनाम अल्टो कार। जमात अपने मेंबरान से फितरा वसूली, ज़कात वसूली वगैरह करने का बंदोबस्त भी करती है। सऊदीया में जमाती निज़ाम की अहमियत का अंदाज़ा तब होता है जब भटकल और उसके अतराफ़ के इलाक़ों के अफराद में से किसी का वहाँ इंतकाल होता है तो मैयत के हुसूल और इस सिलसिले में कागज़ी कार्रवाई के अंजाम दही के लिए जमात की बड़ी कोशिशें होती हैं। चूँकि वहाँ के क़वानीन के मुताबिक मैयत को हासिल करने के लिए कभी हफ्ते और कभी महीनों लग जाते हैं, लेकिन जमात के ताउन से ये काम बहुत उजलत से अंजाम दिया जाता है। एक और बड़ा काबिल कदर इक़दाम ये भी है कि जमात की जानिब से बचत स्कीम के तहत मेंबरान से पैसे जमा किए जाते हैं, जिससे ज़रूरत के मौके पर हाजतमंदों की फौरी मदद का सामान तैयार किया जाता है। कुल मिलाकर खलीज कौंसिल समेत भटकल के 5 मरकज़ी इदारों की हमाजहती तरक्की के लिए जमात हमेशा कोशा रहती है। बअल्फाज़ दीगर जमाती निज़ाम एक रहमत है। इनफिरादी और इज्तिमाई हैसियत से लोगों को उसकी ज़रूरत का एहसास भी है। खुशकिस्मती इसी में है कि अपनी भलाई के लिए मिल्लत की इज्तिमाई क़ुव्वतों के हाथ मजबूत करने चाहिए, क्योंकि एक मजबूत हाथ सैकड़ों कमज़ोर वजूद के लिए काफ़ी होता है। इख्तिलाफ़ात के माहौल में इज्तिमाइयत से जुड़ने का मतलब ये है कि मिली जगानगत और कौमी इत्तिहाद हर तरह के ज़ाती मफाद से बालातर है, और जब पूरे इखलास के साथ कौमें इसी तरह सोचती हैं तो अमली मैदान में सुरैया तक उनकी रसाई में किसी तरह की रुकावट कोई पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि तारीख़ गवाह है कि इज्तिमाई ताकत के सामने मसाइल ही नहीं बल्कि मसाइल के तूफ़ान भी सर झुकाए खड़े रहते हैं, और यही चीज़ इज्तिमाइयत की कामयाबी का सबब बनती है।